السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم امام حسین کی شہادت کے بارے میں دیکھیں گے ویڈیو میں کہ امام حسین کی کس طریقے سے شہادت ہوئی ہے۔ تو آئیے ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ طاقت دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے اور ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا، اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تلوار ہے، دولت ہے، حکومت ہے۔ امام حسین نے کہا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پہ آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین خدا پہ فدا کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوکے نیزہ پہ سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ کہہ نہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکے سے ہو کر کربلا کی طرف رواں ہو گئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر لیا۔ امام حسین صبر کرتے رہے۔ شب عاشور اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک خیمے میں بلایا اور کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، یہ جو باہر فوج کھڑی ہے یہ سب میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں، میرے بابا کے دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے۔ میں تم سب کے لیے حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ سب امام حسین کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ امام حسین نے کہا، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روکے رکھا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ کا بجھنا تھا۔ امام حسین نے کہا، جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تم سب کی جنت کا ضامن میں ہوں، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ سے میں لے کے دوں گا، جاؤ۔ بس کچھ دیر کے بعد امام حسین نے جیسے ہی چراغ جلایا، کیا دیکھیں، سب کے سب تلوار اپنی گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں، اے ہمارے آقا حسین، آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے، نہ ہمیں جانوں کا خوف ہے، صرف اتنا بتائیں، جب روز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، آپ کی والدہ پوچھے گی کہ میرے بیٹے کو ایسے ہی تلواروں کے بیچ میں چھوڑ دیا، تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین نے کہا، اکبر اذان دو۔ علی اکبر کی اذان سے صحرائے کربلا گونج اٹھا اور نماز فجر میں ہی امام حسین پہ حملہ ہو چکا۔ ایک ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا گیا۔ کبھی حر کا لاشا آتا ہے تو کبھی حبیب ابن مظاہر کا، کبھی اون و محمد کی لاش آتے ہیں تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے نانا کی رحلت کے بعد بار بار اپنے بابا علی سے کہتے تھے، بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے۔ امام علی کہتے تھے، اے حسین، نماز میں دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں ہم شکل پیغمبر عطا کرے گا۔ تو اللہ نے علی اکبر عطا کیا۔ جب بھی نانا کی یاد آتی تھی، علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب علی اکبر نے کہا، بابا مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، امام حسین نے فرمایا، جا اکبر، اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں، امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر، کہتے ہیں، بابا میری
में बहुत तकलीफ है। बस जैसे ही सीने के हाथ को हटाना था, इमाम हुसैन देखते हैं एक पर्ची है जो अली अकबर के कलेजे में लगी है। बस हाथों से पर्ची को पकड़ा है और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ऐ दादा इब्राहिम, देख ले, जब आप कुर्बानी दे रहे थे आपकी आंखें बंधी हुई थी। देखो मेरे दादा इब्राहिम, मैं किस तरह से कुर्बानी देता हूँ। बस अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही पर्ची को निकाला, अली अकबर तड़पने लगा और पर्ची के साथ साथ अली अकबर का कलेजा इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। बस खून अकबर को लिए कहते हैं, ए अल्लाह कबूल करना, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अकबर भी कुर्बान कर दिया। और आके अपनी आखिरी हुज्जत तमाम करते हैं। फौज यजीद के सामने कहते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई इस पूरी दुनिया में मुझ गरीब हुसैन की मदद करने वाला। बस सोए हुए लोगों के सोए हुए ज़मीर खामोश रहे, लेकिन एक 6 माह का अली असगर अपने आप को अपनी माँ की गोद से गिरा के कहता है कि मुझे भी मैदान में ले चलो, मैं भी अपने आका हुसैन के कदमों पे कुर्बान होऊंगा। बस इमाम हुसैन को बीबी रुबाब ने अली असगर दिया और कहा, ऐ मेरे आका, ये सोता नहीं, इसे पानी पिलाओ। इमाम हुसैन अपने 6 माह के असगर को लिए मैदान में आते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारी जंग है तो मेरे नाना के दीन से है, अगर तुम्हारी नफरत है तो मेरे बाबा अली से है, मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने क्या कसूर किया है? 3 दिन से पानी न पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस चंद कतरे इसे पानी पिलाओ। तो किसी जालिम ने कहा, असगर अगर खुद पानी मांगेगा तो हम उसको पानी पिलाएंगे। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा, असगर पानी मांगो, ये सुनना था, उमर बिन साद ने कहा, हुर्मिला जल्दी असगर का निशाना ले और जल्दी तीर से इसका काम तमाम कर, ये आले रसूल है, इसमें कोई शक नहीं, आज असगर पानी मांग लेगा। और अगर असगर की मासूम आवाज फौजी जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था, एक 6 माह के बच्चे पर वो तीर चलाया, उस तीर की 3 नोकें थी। तारीख ने लिखा, एक अली असगर के कान में लगी, एक गले में लगी और एक कब्र में लगी। तीर इतना भारी था कि जहाँ जहाँ तीर जा रहा था, असगर भी वहाँ वहाँ जा रहे थे। तीर अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने मासूम असगर को देखा, तारीख ने लिखा, कुछ खून निकला, कुछ माँ का दूध अली असगर के जिस्म से निकला। इमाम हुसैन ने उस खून को लेके आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान रोने लगा, जमीन की तरफ फेंकना चाहा, जमीन तड़पने लगी। वो खून असगर अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, रोज़े महशर मैं अपने नाना को दिखाऊंगा कि नाना, आपके दीन के लिए मैंने असगर किस तरह कुर्बान किया। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और आके सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन को वसीयत करते हैं कि ऐ सज्जाद, मेरे बाद दीन की हिफाजत करना, नमाज कज़ा नहीं करना, कदम कदम पे अपने नाना की सदाकत और रिसालत को बयान करते रहना, अपनी बहनों से बेटियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। जो भी अली के शेर के सामने आता है फिन्नार होता जाता है, जो भी हुसैन के सामने आता है फिन्नार होता जाता है। बस सबने ये मिलके फैसला किया कि ये अब्बास का भाई है, अली का बेटा है, रसूल अल्लाह का नवासा है, इससे कोई जीत नहीं सकता। दूर चले जाओ और दूर से तीर चलाओ, पत्थर चलाओ, ताकि हुसैन घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे आ जाए। बस तीरों की बरसात हुई नबी के नवासे पर, ज़हरा के लाल पर। बस रसूल अल्लाह का नवासा जब घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे आया, न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था, तीरों के मुसल्ले पे था। उमर बिन साद ने कहा, हुसैन का सर काटो। जो भी हुसैन का सर काटने के लिए करीब जाता है, जैसे ही देखे हुसैन की आंखों में
रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है। वो रोकर वापस आ जाते हैं। बस शिब्र करीब आता है और ये कहता है कि ये काम मैं ही करूंगा, और गर्दन पे इमाम हुसैन की छुरी रखता है। जैसे ही छुरी को चलाना शुरू करे, देखिए इमाम हुसैन के मुबारक लब हिल रहे हैं। वो सोचता है कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं। करीब आके सुनने की कोशिश करता है। क्या सुने? इमाम हुसैन के मुबारक लबों से आवाज आती है, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करना। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। और इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे ने कयामत तक इस सदा को बुलंद कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। बाद हुसैन खयाम जलाए गए, इमाम हुसैन की बहनों को कैद किया गया, बाजारों में फिराया गया, पत्थर मारे गए, लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पे सवार होकर भी कुरान की तिलावत सुनाता गया और दुनिया को बताता गया कि दीन हक क्या है। सलाम हो दीन बचाने वाले नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली पर। हुसैन इब्ने अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब 10 मुहर्रम के दिन हर कोई इमाम हुसैन के ऊपर कुर्बान हो रहा था, तो कभी ज़मीन इमाम हुसैन से मुखातिब होकर कहती है कि हमारे आका हमें हुक्म दे, हम अभी फट जाएं और इस पूरे लश्कर को फिन्नार कर दें। कभी आसमान चीख कर कहता है, ऐ मेरे हुसैन हमें हुक्म दे। तो कभी जाफर जिन मुख्तलिफ जिन्नात आते हैं, दस्ते अदब को जोड़ कर कहते हैं, ऐ मेरे मौला हुसैन मुझे हुक्म दे कि इस फौज यजीद को फिन्नार कर दूँ। इमाम हुसैन तमाम अम्बिया, औलिया और तमाम जिन्नातों से कहते हैं कि सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की ये मजाल न होगी कि कोई मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत को झूठा कह सके। बस सब मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे थे। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी निकालते हैं, तो कभी अपने 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब आपके साथ कोई न रहा, आप खयाम में आते हैं, बीवियों से अलविदा कहते हैं, इमाम सज्जाद को वसीयत करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख और तकलीफ बर्दाश्त करना, लेकिन कदम कदम पर अल्लाह की रिसालत की, नबी की रिसालत की गवाही देते रहना। जैसे बीवियों से इजाज़त लेकर जुलजना पर जाते हैं, मुझे मैदान में लेकर जा घोड़े से कहते हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने शहादत की वो दी, किस तरीके से शहादत दी। इमाम हुसैन ने किस तरीके से अपने बेटों को शहीद कर दिया, अपने भांजे और मोहम्मद को शहीद कर दिया, अपने भतीजे कासिम को शहीद कर दिया, और अपने बेटे सबसे प्यारे लाडले बेटे जिस